Assalamu alaikum dear students, hope you all are enjoying good health. Today we are going to start our next lesson, lesson number 4. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am is a short story written by Langston Hughes. Thank you, ma'am is an American short story. This story was published in 1958 and is not in the public domain. That's particularly unfortunate, because not only is it a great example of the short story form in general, it's also one of those important short stories that carries great social value and has the ability to teach and instruct its readers. The story features two characters, Roger and Mrs. Leola Bates Washington Jones. They meet when Roger attempts to steal her purse as she is walking home late at night. Roger loses his balance and Mrs. Jones, who seems to be the substantial woman, first kicks him in the behind as he is sprawled on the sidewalk, and then hauls him up and shakes him. She has the boy pick up her purse and begins to dress him down. Then the story takes a turn. Now let's see what turn it takes and how it takes. But before going to read the story, let's know something about the writer Langston Hughes. Langston Hughes was an American poet, social activist, novelist, playwright, and columnist. He moved to New York City as a young man, where he made his career. He was born in 1901, February 1901, and he died in May 1967. As he was social activist, so this story, Thank You Ma'am, has been written to deliver or teach social values to the audience, to the readers, or to the people of the society. Okay, let's read the story. Open page number 26, all of you. Yes. She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. वो एक कदावर खातून थी. इसके पास एक कशादा हैंडबैग और बैग था जिसमें हर चीज़ मौजूद थी सिवाय एक हैमर, एक हथौड़ी के, और नेल्स, कीलों के. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. उस पर्स की एक लंबी सी पट्टी थी और वो इसे कंधे से लटकाए रखती. It was about 11 o'clock at night. ये रात में तकरीबन 11 बजे का वक्त था. डार्क, तारीकी छाई हुई थी. And she was walking alone, और वो अकेले जा रही थी, अकेले चल रही थी. When a boy ran up behind her
जब एक लड़का उसके पीछे से आया, इसके पीछे से दौड़ता हुआ आया, एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। अब पर्स की पट्टी जो है वो एक झटके से टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। वो झटका जो कि लड़के ने उसे पीछे से दिया था। बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। लेकिन जो लड़के का वज़न था और जो पर्स का वज़न था, वो दोनों मिलकर उसको उसका बैलेंस खो देने का सबब बने, यानी कि वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, अपना तवाज़ुन खो बैठा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk. इसकी बजाय ये लड़का पूरी रफ्तार से पर्स को ले उड़ता या ले भागता, जैसा कि उसे उम्मीद भी थी। As he had hoped, जैसा कि उसे उम्मीद भी थी। The boy fell on his back. अब इसकी बजाय क्या हुआ कि लड़का पीठ के बल, पुष्ट के बल नीचे गिर गया। ऑन द साइड वॉक, पैदल चलने वाले रास्ते पर। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे जो थी वो ऊपर को उठ गईं। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड। कदावर खातून महज पलटी उसके गिर्द, एंड किक्ड हिम, और ठोकर मारी उसे, राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सीटर। उसकी नीली जीन्स के नीचे उसके कूलों पर ठोकर मारी। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो झुकी, नीचे झुकी। पिक द बॉय अप, और उसने लड़के को गिरेबान से पकड़कर, बाय शर्ट फ्रंट, गिरेबान से पकड़कर उसको ऊपर उठा लिया। एंड शोक हिम, और उसे झंझोड़ा, उसे हिलाया। Until his teeth rattled, यहाँ तक के उसके दांत बजने लगे। After that, the woman said, और उसके बाद खातून ने कहा, Pick up my pocket book. लड़के, पॉकेट बुक मीन्स छोटा सा पर्स, बटुआ या वॉलेट, टू कैच और टू कीप द मनी। लड़के, मेरा वॉलेट, मेरा बटुआ मुझे उठा दो, एंड गिव इट हेयर, और उसे यहाँ दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी भी उसे मजबूती से पकड़ रखा था। बट शी बेंट डाउन, लेकिन वो इतना झुकी, टू परमिट हिम टू स्टूप, कि लड़का झुककर, कि उसने लड़के को झुकने की इजाज़त दे दी। एंड पिक अप हर पर्स, ताकि वो झुककर उसका पर्स उठा ले। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। बताओ अब, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो खुद से। फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, द बॉय सेड, यस मैम। लड़का, जिसका गिरबान मजबूती से पकड़ा गया था, उसने कहा, जी मादाम, मैं। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वॉन्ट टू डू इट फॉर। तुम ऐसा किस लिए करना चाहते थे। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडेंट एम टू, कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। शी सेड, यू आर लाई, कि तुम झूठे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people passed,
और उस वक्त तक 2 या 3 लोग वहाँ से गुजरे। स्टॉप्ड, रुके, टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ लोग रुक कर देखते रहे। Now you can see that in the very first paragraph the writer has introduced to you the main characters. The main characters, that boy and that large woman. And setting has been introduced to you, that is, what is the location? 11 o'clock at night. Sorry, what is the time? 11 o'clock at night. And what is the location? Means she is walking on the sidewalk on the road. If I turn you loose, will you run? अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? asked the woman. औरत ने पूछा. Yes ma'am, said the boy. जी हाँ madam, मैं भाग जाऊँगा. Then I won't turn you loose. तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, said the woman. औरत ने कहा. She did not release him. उसने उसे आज़ाद ना किया. Lady, I am sorry, whispered the boy. खातून, मुझे माफ़ कर दीजिए, लड़के ने सरगोशी की. Your face is dirty. तो तुम्हारा चेहरा जो है गंदा है. I got a great mind to wash your face for you. मेरे जहन में एक ज़बरदस्त ख्याल आया है कि तुम्हारा चेहरा धुलवा डालूं. Ain't you got nobody home to tell you wash your face? क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हारा चेहरा धोने में तुम्हारे लिए मदद करे या तुम्हें चेहरा धोने के लिए कहे? No ma'am, said the boy. नहीं मैम, नहीं मदाम, लड़के ने कहा. Then it will get washed this evening. तो फिर इसी शाम ये धुलने जा रहा है, या इसी शाम ये धुलेगा. said the large woman. कदावर खातून ने कहा. starting up the street, dragging the frightened boy behind her. गली में आगे बढ़ते हुए और खौफजदा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए उस कदावर खातून ने कहा. He looked as if he were 14 or 15. वो लड़का 14 या 15 साल का लगता था. फ्रेल, दुबला पतला सा, कमज़ोर सा, एंड विलो वाइल्ड, और जंगली बेद मजनू की तरह कमज़ोर नहीफ दिखाई देता था. इन टेनिस शूज़, और उसने टेनिस के जूते पहने हुए थे. एंड ब्लू जीन्स, और नीली जीन्स पहनी हुई थी. द वुमेन सेड. औरत ने कहा. यू ऑट टू बी माई सन. तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए. आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग. मैं तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाऊंगी. लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस. फिल वक्त अभी कम अज़ कम जो काम मैं कर सकती हूँ वो ये है कि मैं तुम्हारा चेहरा धो दूँ. आर यू हंग्री. क्या तुम भूखे हो? नो, नहीं मादाम, सैड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय. घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज. कि मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें. वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमेन. जब मैं नुक्कड़ से कॉर्नर से मुड़ी थी तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? खातून ने कहा. नो, नहीं मादाम, बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. लेकिन तुमने खुद मेरे पास फंसाया है, सेड द वुमेन. औरत ने कहा. इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ व्हाइल. अगर तुम समझते हो कि मेरी ये गिरफ्त ज़्यादा देर नहीं रहने वाली. यू गॉट अनदर थॉट कमिंग. तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए. व्हेन आई गेट थ्रू
with you, sir. You are going to remember Mrs. Lola Bates Washington Jones. जब मेरा मामला तुम्हारे साथ इख्तिताम पजीर होगा, यानी कि जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो फिर तुम मिसिज़ लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे. Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. पसीना जो है उसके चेहरे से, लड़के के चेहरे से बहने लगा, टपकने लगा, और उसने कोशिश करना शुरू की अपने आप को छुड़ाने की. मिसिस जोन्स स्टॉप्ड. मिसिस जोन्स रुकी एंड जग्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसे झटके से घुमाकर अपने सामने लाई. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसे बाजू गुजारकर, बगल के नीचे से हाथ गुजारकर, बाजू गुजारकर गर्दन के पीछे से उसने पकड़ लिया और उसे खींचना जारी रखा, और उसे खींचते हुए गली में आगे बढ़ने लगी. कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट. गली में आगे बढ़ती चली गई उसे खींचते हुए. व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, तो उसने लड़के को अंदर की तरफ खींचा, अंदर की तरफ धकेल दिया. डाउन अ हॉल, और एक हॉल में से गुजरते हुए, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, घर के एक भी हिस्से में एक बड़े से कशादा कमरे में ले आई. एट द रेयर ऑफ द हाउस, घर के बड़े कशादा कमरे में ले आई, जिसके एक हिस्से को बावर्ची खाने के तौर पर, ठीक है, हिस्से को बावर्ची खाने के तौर पर सजाया गया था. किचनेट फर्निश्ड रूम बावर्ची खाने के तौर पर सजाया गया था. शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट जलाई, एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया. द बॉय कुड हेयर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस. लड़का जो है दूसरे कमरे में मौजूद अफराद की बातें और हंसी सुन सकता था, उसे वो सब सुनाई दे रहा था. सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, और कुछ दरवाजे खुले हुए थे, कुछ के दरवाजे खुले हुए थे. सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, तो वो जानता था कि वो और ख़ातून अकेले नहीं थे. द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ अ रूम, और औरत ने उसे अभी भी गर्दन से पकड़ा हुआ था, और वो उसे वैसे ही खींचते हुए अपने कमरे के वस्त में ले आई. शी सेड व्हाट इज़ योर नेम, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है. रॉगर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने कहा कि रॉगर मेरा नाम है. रॉजर और रॉगर यू कैन से. देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक, अब तुम उस सिंक में जाओ, एंड वॉश योर फेस, और अपना चेहरा धो लो. बेसन वगैरह, वॉश बेसन वगैरह, सिंक मीन्स. सेड द वुमेन, वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, खातून ने कहा, जिस पर उसने अपनी गिरफ्त जो है वो भी उस पर ढीली छोड़ दी, या उसने छोड़ दिया आखिरकार. रॉगर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा. लुक्ड एट द वुमेन, खातून को देखा. लुक्ड एट द डोर, दरवाजे को दोबारा देखा. एंड वेंट टू द सिंक, और बेसन की तरफ चला गया मुंह धोने के लिए. लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, के पानी को खुला छोड़ देना यहाँ तक कि गर्म पानी निकल आए. उसने कहा. शी सेड, खातून ने कहा, हेयर्स अ क्लीन टॉवल, कि यहाँ एक साफ़ सुथरा तौलिया है. यू गोना टेक मी टू जेल, क्या तुम मुझे जेल ले जा रही हो. आज द बॉय, लड़के ने कहा. बेंडिंग ओवर द सिंक,
सिंक पर झुकते हुए। नॉट विद डैट फेस, इस चेहरे के साथ नहीं। आई वुड नॉट टेक यू नाउ, आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, कि मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी। सेड द वुमेन, खातून ने कहा। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, मे बी यू एंड बीन टू योर सपर एदर लेट एज इट बी, हैव यू। मैं अपने खाने के लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का बनाने के लिए घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी और तुमने मेरा पर्स छीन लिया, मेरा बटुआ छीन लिया। शायद तुमने भी रात का खाना नहीं खाया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। क्या तुमने खाना खाया है? देयर इज़ नो बॉडी होम एट माई हाउस, कि मेरे घर पर कोई नहीं है, कोई नहीं होता। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वी विल ईट, तो फिर हम इकट्ठे खाएंगे। सैड द वुमेन, औरत ने कहा। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, या फाका ज़दा रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तुम मेरा बटुआ छीनने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज़, सैड द बॉय, कि मैं चमड़े के नीले जूतों का एक जोड़ा चाहता था। लड़के ने कहा। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज़, कि तुम्हें चमड़े के जूते खरीदने के लिए मेरा पर्स छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैड मिसिज लोला बेयर्स वाशिंगटन जोन्स, मिसिज लोला बेयर्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, कि तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कह सकते हो। स्वाइड मीन्स चमड़े के जूते, चमड़े के जूते। ओके, वी विल read the remaining lesson tomorrow. What you have to do, you have to see the translation of this lesson till page number 27, and you also have to see the meaning of difficult words, and you will see the synonyms, and you will also focus on punctuation while reading the text. Fine, we'll study the next lesson tomorrow inshallah. Don't forget to mark your attendance. Till that time, to take care. Allah Hafiz.